कितने बताओ ना, मुझे लास्ट डेट बता दो आज। ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सर, हम्म। तो जो संडे की क्लास थी, जो टेस्ट की, जो स्किप हो गया था, उसमें क्या हुआ? संडे की। जो संडे की क्लास थी, जो टेस्ट की वजह से स्किप हो गई थी मेरी। वो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, तो न्यूमेरिकल। ओके। नाउ एज यू नो, a cell is a device which converts chemical energy into electric energy. There's electrolyte inside the cell. It could be dry, it could be, liquid form also. And there are two electrodes, and ions move from negative ions will move towards anode, and positive ions move towards cathode. And as a result, there's a potential difference. कैमरा ऑन कर लो सभी लोग. And this potential difference is normally represented by EMF, like this. Electromotive force, इसका full form है electromotive force, though it's not a force, it's basically voltage or potential difference, you can say. But we call it EMF. You can also call voltage. And when ions are moving inside a cell, there is, constant restriction to the movement of ions in the electrolyte. And this resistance to the movement of ions is called internal resistance of the cell, and it's represented by small r. Internal resistance. That is, when the ions are moving, positive ions towards cathode, negative ions towards anode. So there's a hindrance to the movement of these ions. So the hindrance to the movement of these ions is called internal resistance of the cell. Ideally should be zero, but generally every cell has some internal resistance. So this is the complete representation of a cell. या तो तुम सेल को ऐसे represent करोगे, और या फिर like this. So a cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. And लिख लो, a cell is a device. A cell is a device consisting of electrolyte, consisting of electrolyte and two electrodes dipped inside electrolyte. Movement of ions, movement of ions towards respective electrodes, movement of ions towards respective electrodes produces potential difference, produces potential difference between the two terminals of the cell, produces potential difference between the two terminals of the cell, which is called EMF, which is called EMF, bracket में electromotive force, which is called EMF, bracket में electromotive force, or simply voltage.
there is there is hindrance to the motion of ions. There is hindrance to the motion of ions inside the electrode, inside the cell. There is resistance or hindrance to the motion of ions inside the cell, which is called internal resistance of the cell, which is called internal resistance of the cell, represented by small r, represented by small r. Internal resistance behaves, internal resistance behaves in the same manner, as external resistance. ठीक है? Internal resistance behaves in the same manner as external resistance. आगे लिखो, internal resistance of an ideal cell, internal resistance of an ideal cell should be zero. Internal resistance of an ideal cell should be zero. अब कई बार तुमने देखा होगा कि कई सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 सेल कनेक्टेड है। नॉर्मल जो सेल आता है वो 1.5 वोल्ट का होता है, लेकिन इफ यू वांट 3 वोल्ट देन यू कनेक्ट 2 cells in series. If you want 4.5 volt you connect 3 cells in series. If you want 6 volt you connect 4 cells in series. So grouping cluster of cells is called a battery. तो ये बैटरी हो गया, लिख लो। cluster of cells cluster of cells is called a battery. Cluster of cells is called battery. देवेना क्या हुआ? कैमरा ऑन करो। तो अगर कई सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड तो बैटरी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी बैटरी का या सेल का अगर मैं ईएमएफ मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? We know that there's a device called potentiometer, sorry, voltmeter, to measure the potential difference across 2 points. किसी भी सर्किट में अगर हमें रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर। तो इफ वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर across 2 terminals of a cell, because R to inside the cell hai, so there's a key also. So the moment you connect, complete the circuit, current will start flowing in the circuit, है ना? Circuit में current flow करेगा. This is E, this is R, this is current I. तो as such जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की वो क्या होगी? रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी E minus IR. Why? Because E is the source voltage, V is the potential drop or potential across the 2 terminals of the cell. ठीक है? बिकॉज देखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मतलब समझो, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज वेरी सिमिलर टू से फ्रिक्शन ऑन अ रोड। अगर हमें किसी गाड़ी को मूव करना है रोड पे तो वी हैव टू स्पेंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल और डीजल। तो सिमिलरली रेसिस्टेंस को अगर हम ओवरकम करना है, किसी वायर में हमें करंट को फ्लो कराना है, तो रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस स्मॉल आर रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें आई आर एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी।
तो टोटल वोल्टेज इतना था, इसमें से माइनस किया तो इतना वोल्टेज हमें बच गया। तो V विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है। तो दिस इज व्हेन द सर्किट इज क्लोज। क्लोज का मतलब नहीं बंद है सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर क्लोज सर्किट है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर सर्किट ओपन है, दैट वुड इम्प्लाई करंट इज जीरो। ओपन सर्किट में कितना हो जाएगा फिर? V हो जाएगा E, बिकॉज I वुड बी जीरो। तो इफ इट्स ओपन सर्किट, reading of the voltmeter will be equal to EMF, but in a closed circuit, reading of the voltmeter will be E minus IR, provided current is drawn from the cell. ये लिख लो एक बार, फिर दो चीजें डिफाइन करेंगे हम। वन इज EMF of a cell and second is terminal potential. EMF and terminal potential. EMF की डेफिनेशन लिखो। EMF of a cell, EMF of a cell equals to EMF of a cell equals to potential difference, potential difference across across two terminals of a cell, across two terminals of a cell when when circuit is closed, when circuit is closed, ब्रैकेट में current is drawn from the cell, ब्रैकेट में लिख लो current is drawn from the cell। क्या लिखवाया मैंने? एक मिनट दोबारा बोलना काव्या। EMF of a cell equals to potential difference across two terminals of a cell when circuit is नहीं, गलत हो closed. गया। when the circuit is open, when circuit is open, When no current is drawn. yeah, when circuit is open and I is equal to zero लिखना ब्रैकेट में। when circuit is open, ब्रैकेट में I is equal to zero। हमने EMF डिफाइन किया ना पहले। तो EMF of a cell equals to potential difference across two terminals of a cell when circuit is open और I is equal to zero। तो हमने बेसिकली EMF थ्योरेटिकली डिफाइन किया है। बट अगर सर्किट ओपन होगा तो वोल्टमीटर की रीडिंग तो जीरो आएगी ना। रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर तो जीरो आएगी। इसका मतलब हम करेक्ट ईएमएफ ऑफ सेल वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज वोल्ट मीटर वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। जब तक करंट वोल्ट मीटर में पास नहीं करेगी, वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। अगर वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा तो देयर बी नो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है। so that is the reason that we cannot measure, आगे लिखो, as voltmeter, as voltmeter works on, as voltmeter works on deflection method, as voltmeter works on deflection method, correct correct reading or correct value of EMF, correct reading or correct value of EMF of a cell cannot be cannot be measured with the help of a voltmeter. Correct reading of EMF of a cell cannot be measured with the help of a voltmeter. So there's a device called potentiometer. Potentiometer CBSE के syllabus में नहीं है, but it is there in ISC. So So Devina it and cannot be measured by voltmeter. yes, you can't measure EMF of a cell by a voltmeter. तो potentiometer एक device होता है जिसका तुम शायद experiment
करोगे या शायद नहीं करोगे सीबीएसई वाले, बट ये आईएससी में आएगा, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, इसके 3 एप्लीकेशंस हैं, आईएससी में ही है। तो नोट्स में अगर तुम देखोगे तो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग, उनके 3 एप्लीकेशन मैंने किए हुए हैं। तो तुम दोनों को अलग से, देवीना और शौर्य अलग से कर लेना मेरे साथ वो पोटेंशियोमीटर। So potentiometer basically works on zero deflection method, and that's why we can measure voltmeter EMF correctly. अब अगर सर्किट क्लोज है फिर उस केस में क्या होगी रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, इट विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल। तो अब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, लिखो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल इक्वल्स टू इक्वल्स टू potential difference equals to potential difference between potential difference between two terminals of a cell, potential difference between two terminals of a cell when circuit is closed, when circuit is closed. अब सर्किट क्लोज का मतलब ये सब, ये मत समझना कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। सर्किट क्लोज का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो ब्रैकेट में लिख लेना करंट इज फ्लोइंग, करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। So now you know the difference between terminal potential and EMF of a cell. मान लो this is a cell of EMF E, internal resistance R, and it's connected to external resistance capital R, and the current in the circuit is I. This is a cell of EMF E, internal resistance small r, there is an external resistance which is capital R. So if you apply Kirchhoff's law, suppose you start from A, go to B, then C, and then D, and then back to A. क्या इक्वेशन बनेगी? A to B कुछ भी नहीं है, B to C, we are moving in the direction of current, so minus IR. Again, in the direction of current, minus small IR, I small r, and बैटरी क्रॉस किया तो प्लस C. और you can say I कॉमन R plus R is equal to E, है ना? और करंट इज इक्वल टू E over R plus R. So this is I is equal to E over R plus R. Current in the circuit is this. Suppose potential difference across capital R is V. तो V क्या होगा? V would be I into R, है ना? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस V माइनस आई आर प्लस E इज इक्वल टू 0, और V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. मान लो कैपिटल R इज वेरिएबल, इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. माई क्वेश्चन फॉर यू इज प्लॉट ग्राफ बिटवीन V and R. Plot a graph between capital V, which is potential difference across resistor, and R. करो.
आर जीरो हो रहा है तो वी जीरो। थोड़ा जोर लगा के बोलो। जब आर जीरो हो रहा है तो वी जीरो। मैंने आई ग्राफ बनाए, ग्राफ। मैंने ग्राफ दिखाओ। एक ये बोर्ड में आ चुका है कई बार क्वेश्चन। देवीना, बन गया? बनाओ। नंदिनी, कर लिया? काव्या कर चुकी है वैसे। कैसा बन रहा है काव्या? सर आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर रेजिस्टेंस चेंज हो फिर कैपिटल आर चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बी इक्वल टू आई आर होता है, so I want it be like a straight line. हम्म। So either it will decrease linearly या फिर it will be like no change. देखते हैं आप अभी। आई को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं एक बार, ठीक है? अगर इसमें आई को सब्स्टिट्यूट कर दें, ई ओवर आर प्लस आर, ठीक है, तो क्या आएगा? वी इज इक्वल टू ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर बाई आर प्लस आर, राइट? दैट मीन्स वी का रिलेशन हमने निकाल लिया। ये तो कट गया है ना? ई आर, और इसको ई लिख देता हूँ वैसे, ई आर बाई आर प्लस आर। ये रिलेशन आ गया, ठीक है? वी इज बेसिकली ई आर ओवर आर प्लस आर। स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर जो था वो वेरिएबल था। गिवन सेल का ईएमएफ भी कांस्टेंट है। तो जब आर जीरो होगा, कैपिटल आर मान लो जीरो है, मान लो कैपिटल आर, ये कैपिटल आर है, ये जीरो है, तो कैपिटल आर जीरो आने में वी भी जीरो हो गया, वी ऑन द वाई एक्सिस ले लिया, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। ये मैंने लिख लेना, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर में आई को रिप्लेस किया है, देख लो एक बार। मेरा वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में हमने आई को रिप्लेस किया। मेरा रिलेशन अलग आ हाँ। मेरा रिलेशन अलग आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो ग्राफ भी तुम्हारा। तो अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। कैपिटल आर से डिवाइड करो उसको, तो ई डिवाइड बाय वन प्लस आर बाय आर आ जाएगा। मैंने ऊपर नीचे कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया। इस वाले फॉर्मूले में अगर तुमने आर को अगर मान लो इन्फिनिटी कर दिया, तो क्या होगा? अगर आर को इंक्रीज करोगे तो ये टर्म डिक्रीज होगी, मतलब डिनोमिनेटर से डिक्रीज होगा। कैपिटल आर बढ़ाने से डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, तो मतलब वी बढ़ेगा, तो वी हैज टू गो अप। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल आर कितनी हो सकती है? वे भी इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा। तो जब कैपिटल आर इन्फिनिटी होगा तो आर बाई आर तो जीरो हो जाएगा। मान लो कैपिटल आर इज इन्फिनिटी, तो आर बाई आर वुड बी जीरो, मतलब वी हो जाएगा ई डिवाइड बाई वन प्लस जीरो, तो वी वुड बी इक्वल टू ई। सो वी वुड इंक्रीज एंड अल्टीमेटली इट बी लाइक दिस। तो जैसे जैसे तुम सेल मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, तो ईएमएफ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल सेल विल इंक्रीज। बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ईएमएफ के बराबर। तो ग्राफ वुड बी इंक्रीजिंग ग्राफ लाइक दिस। एक और काम करते हैं, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड स्मॉल आर। इस बार सपोज आर कांस्टेंट है, तो वी वर्सेस आई में क्या ग्राफ बनेगा? आर भी कांस्टेंट है, या ये भी कांस्टेंट है। सेल का
इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। और क्या वो कायशा तुम सो गई थी क्या? सर मेरी दूसरी क्लास एंड नहीं हुई थी। अच्छा, दूसरी कौन सी क्लास? केमिस्ट्री? यस सर। केमिस्ट्री में ज्यादा यस सर। केमिस्ट्री में ज्यादा डर लगता है फिजिक्स से? नहीं सर। सो नेक्स्ट इज V वर्सेस I। कर लो। इस बार स्मॉल r कैपिटल R कांस्टेंट है, एंड वी आर प्लॉटिंग a ग्राफ बिटवीन V एंड I। इक्वेशन तुम्हारे पास एक ये है, एक ये है, एंड यू ऑल्सो नो दैट V इज I कैपिटल R। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I। V y एक्सिस पे है, I यहाँ पर है। इस इक्वेशन को V इक्वल टू E माइनस आई आर को यू कैन कंपेयर विद द y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ा था ना 11 क्लास में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस, द y इंटरसेप्ट इज e, करंट I की जगह वी हैव x। x हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता था? Was like this. It could be like this also depending upon the slope, नेगेटिव है पॉजिटिव है, या ये भी हो सकता था ग्राफ, ये भी हो सकता था ग्राफ। सो फॉर श्योर बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना? इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर आई जीरो होगा, यहाँ मान लेते हैं आई जीरो होगा, तो वी कितना हो जाएगा? मैक्स, दैट इज ई, एंड देन बी स्ट्रेट लाइन। So this is V versus I। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं I जीरो एंड V इज इक्वल टू ई। जबकि यहाँ पे क्या होगा? I मैक्सिमम हो जाएगा और V जीरो हो जाएगा। बिकॉज इट्स एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, करंट वाला एक्सिस है ये। ठीक है।
Now, grouping of cells में we can connect cells in series. मान लो कई सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है in such a manner that all of them send current in the same direction. मतलब सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साइड एक साथ कनेक्टेड है. So this is E1, this is R1, this is E2, this is R2, and so on. So this is En, this is Rn. And there's an external resistance, capital R, and the current is I. So n number of cells, सबके EMF अलग अलग हैं, सबके internal resistance भी different हैं, and they're all connected in series with an external resistance capital R as shown. सारे cells they're sending current in the same direction. तो अगर तुम इसमें किरचॉफ्स रूल लगाओगे तो क्या होगा? If I start say like from here, this is I, so it'll be minus IR. फिर मान लो ये सेल क्रॉस किया तो क्या बनेगा ये? दिस वुड बी EN माइनस I इंटू RN. पहला सेल क्रॉस किया बिकॉज करंट की डायरेक्शन ये है. वी आर मूविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड व्हेन यू क्रॉस द सेल यू एंड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल. फिर दूसरा सेल आएगा डैश 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 एंड सो ऑन. E2 माइनस IR2 and then E1 minus IR1 equals to 0. हमने किरचॉफ्स रूल यूज कर लिया. किरचॉफ्स रूल के क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस अब. जुलाई फर्स्ट वीक में तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है. फिर हम्म. EN माइनस IRN कैसे हो? इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो जब किसी रेजिस्टेंस को तुम क्रॉस करते हो डायरेक्शन करें तो माइनस IR होता है. जब सेल क्रॉस करते हैं सेल क्रॉस करने का जो साइन आता है उसको यूज कर. ओके ठीक है ठीक है. तो हर सेल में यही होगा. तो फिर हम क्या करते हैं? बैटरी वोल्ट EMF को इकट्ठा क्लब कर लेता हूं मैं. E1 प्लस E2 प्लस EN हो जाएगा और बाकी टर्म को राइट में ले जाके आई कॉमन ले लेते हैं. तो जाएगा R हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RN. सो वी कैन फाइंड I फ्रॉम हियर. तो करंट द सर्किट कितना हो गया? E1 प्लस E2 टिल EN डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2 टिल RN. So this will be the formula for the current in the circuit. सारे वोल्टेजेस ऐड हो गए. वैसे देखा जाए थ्योरेटिकली कॉमन सेंस के लिए तो तुम बोल सकते हो कि सप्लाइड वोल्टेज ऊपर सम हो गया बिकॉज सारे सेल सेम डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे थे. टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2 प्लस RN हो गया. मान लो अगर सारे सेल आइडेंटिकल होंगे तो फिर क्या होगा? If all cells are identical, that means R1 will be equal to R2 will be Rn equal to R, है ना? E1 equal to E2
टिल ई एन, उसको हम लेट कर लेते ई. सो इन दैट सिचुएशन आई विल बी n into e over r plus n r. So if all the cells are identical, each having EMF E and internal resistance small r, in that situation, this is the formula. बट यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे सेल्स सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है, मतलब द सेंडिंग करंट इज द सेम डायरेक्शन, राइट? हाँ, जुलाई में वेडनेसडे कब आ रहा है? फर्स्ट. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट रख लें फर्स्ट को या फ्राइडे को रखें? तो फ्राइडे बोलोगे, मुझे मालूम है. थर्ड, ठीक है, फ्राइडे. थर्ड, जुलाई थर्ड को तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा. काफी लोगों ने तो अभी वही टेस्ट नहीं दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का. अभी मैं तो बाकी लोगों को एब्सेंट कर रहा हूँ. फ्राइडे इज द लास्ट चांस जिसको देना है, वरना बाकी लोग एब्सेंट, जो नहीं देगा टेस्ट. दिव्या एब्सेंट है. दोगे तुम आज टेस्ट? कायशा, तुमने दिया टेस्ट? सर सेकंड वाला नहीं दिया. कब दोगी? सर अभी तो मैथ्स के लिए पढ़ रही हूँ. अरे नहीं, तो फिर कभी हो ही नहीं पाएगा, फिर तुम्हें एब्सेंट ही रहना. ठीक है, मैं इसमें एब्सेंट लगाऊंगा. फ्राइडे तक देना है दे दो. सन मैक्सिमम सैटरडे तक दे दो. फ्राइडे. फिर कैसे हो पाएगा अदरवाइज? अब तो नया चैप्टर शुरू होने वाला है, लास्ट क्लास है आज की इलेक्ट्रिसिटी की. अगली क्लास में मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करूंगा मैं. Okay. हम्म. सर हमारे पास एक ही तो क्लास और है फ्राइडे को. हाँ, तो एक क्लास में शुरू नहीं हो सकता? सर आप डुअल ही करवा दो. क्या करा दूं? डुअल नेचर. डुअल नेचर तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, करने से पहले हो जाएगा वो. खत्म हो जाएगा वो एक दिन. जो ये मेजर चैप्टर ये वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैक्सिमम लोगों के इस एग्जाम में आ भी रहा होगा ये. डुअल में तो 3-4 क्लास में हो जाएगा. केमिस्ट्री में तुमने डुअल नेचर किया हुआ है, रिमेम्बर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 11th केमिस्ट्री या 12th में शायद, सर किसमें? लेकिन गैप हो जाएगा फिर मैग्नेटिज्म. कैसा गैप हो गया? सर एक क्लास के बाद फिर और तो 3 स्टेप. डुअल में गैप नहीं होगा? हाँ. सर डुअल तो हो जाएगा ना अच्छा. almost. अरे मैं क्वेश्चन ढूंढा, तुमने सारा क्वेश्चन बुलवा दिया मुझे. तुम्हारे चक्कर में हमेशा ये होता है. अभी जो किया एक बार रिवाइज करो, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ असाइनमेंट में. क्वेश्चन 126 करो असाइनमेंट का. 126. असाइनमेंट का क्वेश्चन 126. और जुलाई में ही तुम्हारा यूनिट 1 2 3, या तो ऐसे करेंगे, मैग्नेट इफेक्ट करंट करने के बाद 1 2 3 4 का टेस्ट रख लेंगे. 2 आर टेस्ट, ठीक है? बिकॉज अगस्त सितंबर में तुम्हारा वो भी होने वाला होगा, फर्स्ट टर्म. देवीना का तो कोई टेस्ट होता ही नहीं स्कूल में, बट मस्त, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सर समर ब्रेक खत्म होते ही मेरा फिजिक्स का टेस्ट है, लेकिन उसमें सिर्फ रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. तो रे ऑप्टिक्स कर लेना तुम बीच में आके मेरे साथ. हाँ सर. नोट्स में तुम्हें दे दिए थे ना उसके. हाँ.
न्यूमेरिकल्स कर लेना प्रैक्टिस। क्वेश्चन 126 असाइनमेंट का देखो। हाफ ईयरली में फर्स्ट बुक पूरा है। तुम इतनी जोर से बोलती हो, मेरे कान के पर्दे फट जाते हैं और मैं सुनना बंद कर देता हूँ। हमारे फर्स्ट टर्म में पहला बुक पूरा है। हाँ, पहला कब है फर्स्ट टर्म? सितंबर, अगस्त? अगस्त एंड में शुरू हो। अगस्त तब तक तो हो जाएगा। मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। ईएमआई शायद पूरा नहीं हो पाए तब तक, बट आई गिव यू नोट्स, उसमें बता दूंगा क्या आ सकता है उसमें ना। मतलब 80% हम कर लेंगे ढंग से पूरा। तो इसका सेकंड पार्ट कैसे हुआ? सेकेंड पार्ट में दो सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दो सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा? वो दो सेल को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज दे विल सेंड करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हो गया शौर्य? फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सीधा फॉर्मूला में डालना था। देखो, डोंट टेक लाइटली थिंग्स, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाली है। तुम्हारा एंट्रेंस भी है इस बार, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो किया जा रहा है उसको साथ साथ करते जाओ। और टेस्ट मिस करने का मतलब है तुम अपना नुकसान कर रहे हो। टेस्ट नहीं देके अपना ही नुकसान होगा। अभी टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पता लग जाए कहाँ पे कमियां आ रही हैं। डर जो है फिजिक्स का वो तो दूर हो जाएगा धीरे धीरे। तो पहले वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नंबर ऑफ सेल्स 10 दे रखा है, ई कितना 1.5 है, आर है 10, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 10। दिस इज 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 5, आई इज इक्वल टू 15/15, 1 एम्पियर आ गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब क्या हुआ? मान लो 3 सेल, 10 की जगह हम चलो 10 सेल ही ले लेते हैं। 10 में से हमने 2 सेल उल्टे कनेक्ट कर दिया, मतलब 8 सेल्स सेम डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे हैं। बाकी जो 2 सेल हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे हैं। जैसे जस्ट सी दिस, ये 2 सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे हैं। तो ये सेल कितने बचे थे हमारे पास? 8। ये 2 सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एज इफ ये मान लो कि 10 तुम्हारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसमें से 8 पॉजिटिव रह गए, बाकी 2 नंबर को तुमने माइनस कर दिया। तो इफेक्टिवली कितने नंबर बचे? 6 बचे हमारे पास। तो जो 2 सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, दे विल कैंसिल आउट। 8 में से 2, तो 6 इफेक्टिवली सेल बचेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। बिकॉज उल्टी डायरेक्शन में करंट कनेक्ट करने का मतलब है दे विल सेंड करंट ऑपोजिट डायरेक्शन, दे विल कैंसिल आउट। जैसे कि मानो 2 सेल हैं तुम्हारे पास, एक सेल मैंने ऐसे लगा दिया, दूसरा सेल ऐसे लगा दिया, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सर्किट के साथ। ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है। तो इस सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो 8 10 सेल टोटल थे, 2 सेल को उल्टा कर दिया तो बाकी 8 में से 2 माइनस होंगे, 6 सेल इफेक्टिवली बच जाएंगे। लेकिन रेसिस्टेंस का क्या हुआ? रेसिस्टेंस कैंसिल नहीं होगा, रेसिस्टेंस वही रहेगा 10 सेल का, ठीक है।
10 सेल वाला रेसिस्टेंस ही रहेगा। तो अब इफेक्टिवली सेकेंड पार्ट में वी हैव ओनली हाउ मेनी सेल्स कनेक्टेड, 6। सो 6 into 1.5, एंड नीचे वाला वही रहेगा, 0.5 into 10। बात समझ में आ गई? कायशा, सो रही हो क्या तुम? नहीं सर। लग रहा है मुझे, तुम कैमरा ऑन कर लिया करो। तो नीचे वाला सेम क्यों रहेगा? क्या हुआ नीचे वाला? सेम क्यों रहेगा? नीचे वाला 10 क्यों रहेगा? सेम क्यों रहेगा? हाँ, 6 नहीं बिकॉज उसके। रेसिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, रेसिस्टेंस थोड़ी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। रेसिस्टेंस, अगर तुम सपोज नोएडा से दिल्ली आते हो तब भी पेट्रोल लगेगा, वापस जाते ही थोड़ी कि पेट्रोल वापस मिल जाएगा तुम्हें। भाई फ्रिक्शन तो ओवरकम करना पड़ेगा दोनों टाइम। तो रेसिस्टेंस जो सेल का है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो ये थोड़ी तुम बोल सकते हो कि हम एक बार वहां से वहां गए, एक बार वापस आ गए, हमें पेट्रोल वापस मिल जाएगा, कार में वापस पेट्रोल आ गया। सो इसे लाइक ए रेसिस्टेंस इज लाइक ए फ्रिक्शन, तो उसको तो ओवरकम करने के लिए, तो सेल उल्टा डायरेक्शन में था तो ईएमएफ कैंसिल हो गया, रेसिस्टेंस वही रहेगा 10 सेल वाला। 9/15 कितना हो गया ये? 0.6। ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शंस का था। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पैरेलल ग्रुपिंग का पहले हम दो सेल का करते हैं, जो कि डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में। ये मैंने नोट्स में तुम्हें दे रखा है, तो आई वोंट डेराइव इट हियर। मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। दो सेल हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल सेम साइड में कनेक्टेड है। देयर आर टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। करंट सेज आई, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, ये I1 मान लो, दिस इज I2, दिस इज I1, दिस इज I2, एंड दिस इज अगेन I। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू सेल्स सेम होगा, तो दोनों सेल के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V, E1 माइनस I1 R1। V वुड बी E1 माइनस I2 R2 ऑल्सो। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना? करंट डिवाइड होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिंस करंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो जो मैंने डेरिवेशन किया हुआ है नोट्स में, यहाँ से मैंने I1 निकाला हुआ है, यहाँ से I2 निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से कंपेयर करके हमारा जो आंसर आता है रेसिस्टेंस का पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है? दो का मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ऐड इन द डिनोमिनेटर, ये था इफ यू रिमेम्बर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? ऐसे तो निकलता है, मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ऐड इन द डिनोमिनेटर। और अगर दो की जगह बहुत सारे सेल्स हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो क्या करेंगे? देन इन दैट केस विल टेक 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2, एंड 1/Rn। तुम लोग हॉलीडे मूड से बाहर आ जाओ। 12th के स्टूडेंट का कोई हॉलीडेज नहीं होता है, कोई छुट्टियां नहीं होती। काव्या को देखो, पढ़ रही है बेचारी जब से, कोई छुट्टी नहीं ले रही है। दिव्या 15 डेज की छुट्टियां में, नंदिनी तो हर दिन छुट्टी है। सृष्टि ने भी छुट्टी ले ली, कायशन ने 20 दिन की छुट्टी ले ली, अभी भी सो रही थी अभी। तो 12th क्लास में नो छुट्टी। देविना ने भी छुट्टी नहीं, देखो।
शौर्य, तुमने छुट्टी ली थी लास्ट क्लास में, तुम गायब थे। हाँ, नानी घर। तो अगर बहुत सारे सेल्स पैरेलल में होंगे तो इससे तुम पैरेलल का फॉर्मूला लगा के नेट रेजिस्टेंस निकाल लोगे। ईएमएफ का फॉर्मूला इक्विवेलेंट सेल का ये होता है, मान लो कि ये सिस्टम पूरा का पूरा, इट इज इक्विवेलेंट टू a single cell and single resistance which is having R equivalent resistance and E equivalent इसका वोल्टेज। तो E equivalent का फॉर्मूला होता है E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। ये दो सेल का फॉर्मूला है। अगर दो सेल हैविंग डिफरेंट ईएमएफ and different internal resistances are connected in parallel, then this is the equivalent resistance and this is the equivalent voltage। अगर बैटरी सपोज उल्टा कनेक्टेड होता तो क्या होता? ये डेरिवेशन 3 मार्क का आ सकता है, इसको नोट से पढ़ लेना। वैसे मेथड मैंने बता दिया है, छोटा सा डेरिवेशन इसका, नहीं समझ में आ गया तो दोबारा मैं करा दूंगा। अगर न्यूमेरिकल आता है फॉर्मूले में स्ट्रेट अवे डाल सकते हो। अगर ये सेल उल्टा होता, मान लो अगर दोनों सेल उल्टे कनेक्शन होते, मतलब पॉजिटिव इसका यहाँ है E1 R1, इसका नेगेटिव इधर है, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा बस। सिर्फ न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आएगा, रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे R1 प्लस R2 ही आएगा। जस्ट फॉर न्यूमेरिकल से डेरिवेशन ये वाला आएगा, पॉजिटिव वाला। अगर लेकिन अगर n नंबर ऑफ सेल्स हैं फिर क्या करोगे? n नंबर ऑफ सेल्स अगर हैं तो E इक्विवेलेंट जो इसका फॉर्मूला है वो ये होता है, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 टिल En बाय Rn। अगर n cells having different EMFs, different internal resistances are connected in parallel, then you can use this formula। लिख लो। ठीक है, अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं फिर क्या होगा? अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं उस सिचुएशन में हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। So this is E, this is R, this is E, this is R, and n number of cells are connected to external resistance कैपिटल R हो गया। फिर क्या होगा? This will become 1 by R equivalent is equal to, ये n टर्म्स बन जाएंगे, n by R, n by R, n by R, तो ये बन जाएगा n by R। सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R by n, राइट। सारे सेल एक जैसे हैं, वैसे ही पैरेलल में R by n हो जाता है। व्हाट अबाउट दिस? इक्विवेलेंट कितना आएगा? इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना है? R by n। ये सारी टर्म्स आइडेंटिकल बन जाएंगी, n टर्म्स, n इंटू ई बाय आर। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया देखो जरा, एन ई बाय आर इंटू R बाय n। लो कर लो बात, सब कट गया। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो कितने ही सेल तुम पैरेलल में लगा दो, अल्टीमेटली वोल्टेज सेम ही आएगा।
मतलब दिस सर्किट, this combination of cells connected in parallel is equivalent to a single cell and internal resistance R by N connected to capital R. ये पूरा सर्किट इसके इक्विवेलेंट हो गया। रेसिस्टेंस R बाय N हो गया, वोल्टेज सेम रहेगा। अगर 10 सेल तुमने पैरेलल में लगा दिया तो वोल्टेज वही रहता है, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो व्हाट अबाउट करंट कितना होगा? करंट इन द सर्किट विल बी वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R बाय N। तो ये फॉर्मूला होगा अगर बहुत सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। कैसे लिख लिया? So right. एक बार तुम फिजिक्स में अगर पीछे रह जाओगे तो वो बैकलॉग चलता रहेगा इसका, फिर उसको जल्दी से खत्म करो। मैथ्स का टेस्ट कब है? संडे को है कॉम्प्लेक्स का? Saturday. अच्छा, सैटरडे को ऐसा क्लास। वो तो क्लास नोट्स पढ़ लोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, मैंने कहा था ना। क्लास नोट ढंग से कर लेना। क्वेश्चन 129 करो, असाइनमेंट का 129। क्या वो काव्या कुछ पूछना है? नहीं सर, खोल रही हूँ असाइनमेंट। ठीक है। सर क्वेश्चन 129 है ना? हम्म। दीक्षा क्वेश्चन सुनाना। तो आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, आप सुनाई दे रहा है, तुम्हारी बुलंद आवाज हो गई अब तो। When 10 cells in series are connected to the ends of a resistance of 59 ohm, 59 ओम कैपिटल आर हो गया। the current is found to be 0.25 ampere. 0.25. राइट, दैट But इज। हम्म।
But when the same cells being connected in parallel are joined to the ends of resistance of 0.05 ohm. अच्छा, इस बार पैरेलल में Hmm. एक्सटर्नल डिस्टेंस कितना है? 0.05 ohm. 0.05 Hmm. एंड The current is 25 ampere. ऑलराइट, सेल का ईएमएफ दे रखा है? EMF और internal resistance निकालना है. ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स तो दे रखे हैं ना? 10. ठीक है, क्या तुम एनर्जी ड्रिंक लेके आए होगे अभी? आवाज तुम्हारी ठीक हो गई अब? चलो करो। एक सीरीज का फॉर्मूला, एक पैरेलल का फॉर्मूला, दो इक्वेशन, दो अननोन। थैंक यू वेरी मच, हो जाएगा, कर लो। दोनों फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं, सीरीज का भी है और पैरेलल का भी है। एक ही क्वेश्चन तो ये आ गई तुम्हारी। या तो यहाँ से ए निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 0.05 वुड बी 5/100, 1/20। इक्वेशन 1 में ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ई सर इज 1, हाँ। नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है।
बहुत नाइंसाफी है। मैंने भी सेम गलती करी थी, मैंने आर को ऊपर नहीं भेजा तो मेरा नेगेटिव में आ गया, बट जो नीचे वाला 10 है वो ऊपर जा रहा अच्छा, या तो कुछ मिसप्रिंट है क्या ये? है। या तो मुझे लगता है ये गड़बड़ हो गई फिर, या तो। मेरा तो सही यार। सही आ रहा है। मेरा आर 1/10 है, मतलब हाँ, बहुत। नेगेटिव ही आ रहा है। हो सकता है कि पैरेलल का जो वो रेसिस्टेंस है ना, वो 0.05 ना हो। इसका आंसर पीछे क्या दे रखा है? स्मॉल आर कितना? जीरो हाँ, पॉइंट 0.1 दिया, क्योंकि जीरो मेरा पॉइंट वन टू नहीं 0.1 बस ओम। अच्छा, मेरा तो आ रहा है सॉल्व करने पे। ओके। नहीं, फॉर्मूला तो मैं यही यूज किया होगा। सर आपने आई को 0.05 लिख लिया। ओहो, सेकंड आई वाले में ना। ट्वेंटी हाँ, फाइव हाँ, गॉट इट, गॉट इट। सेकंड में ना ये वाला, यही गलती हो गई। इसमें करंट ज्यादा था ना, करंट डिफरेंट था। पैरेलल में करंट डिफरेंट है। हम्म। शायद काव्या ने भी ये किया होगा। नहीं, तो फिर पता तुम्हारा नहीं। नेगेटिव क्यों आ रहा है? अब सब्स्टिट्यूट करो, 10R + 59 = 40E। ई को रिप्लेस कर दिया। आर आ गया 9/90.1 है ना। R is 0.1, और फिर आर को 0.1 इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। हो जाएगा 0.01, 0.05, तो 25 × 0.06, 1.5, यही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से यही, इसमें और क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना हम। असाइनमेंट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी खत्म कर लेंगे। तो फिर मैग्नेट इफेक्टिव करंट आई स्टार्ट इन द जुलाई ओनली व्हेन वी स्टार्ट द क्लासेस अगेन। बट डोंट वेस्ट अ मिनट ऑल्सो, सिंगल मिनट पर सारा पढ़ लेना ढंग से। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे क्वेश्चंस, असाइनमेंट के सारे प्रीवियस ईयर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। सो आई सी ऑन फ्राइडे नाउ। ठीक है। Thank you, sir. एंडिंग द Thanks. बाय।